Good morning, dear student. Welcome back in a science class. And in today's class, we are going to discuss the remaining portion of fifth chapter, that is pressure. So, pressure generally, when we are talking about the pressure, we are talking about the pressure built in the pressure cooker. Okay, then pressures. The blood pressures, we are also talking about the blood pressure sometimes in a weather forecast. The papers are discussing about the low belt pressure areas built in the Bay of Bengal or Arabian Sea. So this here we are going to discuss more about the pressure. So what does the pressure, this word pressure means in a science? So in the science, the means of this word pressure is that the force acting per unit area of surface is called pressure. So in a science, the means of this pressure can be defined as the force acting per unit area of the surface is called pressure. Means whatever the surface we are taking, whatever the pressure is exerted on that area. Suppose that हमने ना ये प्रेशर 1 स्क्वायर एक कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दिस. सो द अमाउंट ऑफ प्रेशर, द अमाउंट ऑफ फोर्स, सॉरी, this amount of the force means how much force is acting on this per unit area. Per unit area पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे या 1 मीटर स्क्वायर पे, है ना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर पे कितना कोई भी फोर्स लग रहा है, that amount of the force that acting on a per unit area is called what? Pressure. So this is exactly means in a science. Okay, so how can you define the pressure? The pressure can be defined as the force acting per unit area of the surface is called pressure. Okay, now this pressure, so this pressure you can write like this. Pressure is equal to this force per unit area, and simply this pressure is represented by, simply this pressure is represented by the P. So you can say that this P is equal to F into A. So this is the formula for finding the pressure. P, what is this P? P means this pressure. Okay, this P means pressure. Here you can say that this P is equal to pressure, F is equal to force, and A is equal to area. Okay, so by applying this formula you can find the pressure. Okay, here you have three quantities, this pressure, force and the area. So by giving two quantities, means two quantities is given in the question, and you have to you can find any when missing a quantity. Suppose that you have to find pressure, these things are given, two things are given, then you can find it a force, these two things are given, then you can find this area. So here from this formula, in this expression, the force is a numerator and this one is a area is a denominator. आप इधर देख रहे हो ना, इस फॉर्मूले में फोर्स क्या है आपका, न्यूमरेटर है. ओके ना, कोई भी फ्रैक्शन होता है उसको अपर पोर्शन जो होता है, अपर पार्ट होता है, अपर नंबर होता है, उसको ऊपर कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. सो फ्रॉम दिस यू कैन से दैट, फ्रॉम दिस वन यू कैन से दैट if the force increases, the pressure
increases and vice versa. Means this force है ना, this pressure is directly proportional to the force. Okay, this pressure is directly proportional to the force. यानी force बढ़ेगा तो आपका pressure भी बढ़ेगा. जितना ज़्यादा force होगा उतना ही ज़्यादा pressure होगा, और जितना ज़्यादा pressure होगा उतना ही ज़्यादा force होगा. Okay, because why it is? Because it's directly proportional to the each other. ना, एक quantity बढ़ रही है तो दूसरी quantity भी बढ़ेगी. जितना pressure बढ़ रहा है उतना ही force भी बढ़ेगा, जितना force बढ़ रहा है उतना pressure भी increase करेगा. आप ज़्यादा force लगाओगे तो ज़्यादा pressure होगा, और कम force लगाओगे तो कम pressure होगा. Now second things, if the area over which the force acts decreases, the pressure increases and vice versa. Means if we are talking about the relations between this force and the area, so this this pressure, not force, pressure. If we are talking about the pressure and area, so the relations between the pressure and area is there to what? It's inversely proportional. Okay, inversely proportional means what? आपका यदि एरिया इंक्रीज करा तो जितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज करेगा प्रेशर उतना ही कम होगा, एंड जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा. यानी ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, और ये क्वांटिटी बढ़ेगी इंक्रीज करेगी तो ये क्वांटिटी ऑलरेडी हमेशा डिक्रीज करेगी, यानी कम होगा. दैट्स वाई कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेशर लगाना होता है तो एरिया उतना ही कम होना चाहिए. दैट्स वाई द शेप ऑफ नेल, यू कैन सी दैट इट्स अ वेरी पॉइंटेड, है ना. ऑलपिन भी आपने देखा होगा कि आगे से, या नीडल, है ना, नीडल देखा है. नाइफ जो है, चाकू जो है, नाइफ है, बिल्कुल ना शार्प होती है. क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी कम होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगा सके. इसीलिए इफ़ वी वांट टू पुट द वन होल, है ना, आपको ना एक कील जो है ना दीवार में डालनी है, तो उसका ना आगे वाला पार्ट जो है बिल्कुल पॉइंटेड होता है ना, शार्प होता है, नुकीला होता है. क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है काफ़ी कम होना चाहिए, और बैक साइड का जो पोर्शन देखते हो वो थोड़ा सा मोटा होता है, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हो, और आगे से कम हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लग सके, और ज़्यादा प्रेशर लगेगा वो तो आसानी से वो वॉल में घुस सकती है, बनाना. So for here when activity is given here, means आप increase करोगे एरिया या प्रेशर तो किस तरह से. so you everybody you go through this activity 11.6 कि किस तरह से ना एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, और फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर कैसे बढ़ता है. you can go through this activity. Due to now say this the page number 138. Due to this reason, the area of a pointed end of the nail is much smaller than that of its head. The relations by this area and pressure, okay, area और pressure के relation के कारण ही जो nail जो होती है, that is much smaller than that of its head. Head जो है वो बड़ा होता है और sharp pointed आगे वाला front part होता है वो काफ़ी pointed होता है, जैसे nail में होता है, needles में है ना, सुई में है, या फिर all pin में है. The same force therefore produce a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank, है ना. यदि किसी भी wooden plank में आपको कील मारना है, ठोकना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आगे से शार्प होनी चाहिए. यदि ब्लंट होगी तो वो आप आराम से उसमें किसी भी वुड में आप कील नहीं मार सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रेशर. So now a unit of pressure so you can calculate from this formula. As we know that the formula for finding pressure is called what? E equal to F divided by A. And we know that what is the force unit of force. अब previous class में हमने पढ़ा था ऐसा ही unit of force. Okay. वो
Tell me what is the SI unit of force? Yes, Newton. Okay. So this is a Newton, and SI unit of area. एरिया आप किस में फाइंड करते हो ना, मैथ्स में कैलकुलेशन करते हो ना, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल लाइक दैट. सो एरिया इज ऑलवेज इन अ मीटर स्क्वायर. So that is a meter square. So the SI unit of pressure is what? A Newton a meter square. Okay. This is the SI unit. Okay. SI unit of pressure is a Newton a meter square, or you can write it like this. This Newton meter square. Okay. Okay, so what is the SI unit of SI unit of pressure is Newton per meter square. Okay, and this can be written like this Newton meter square, or this Newton meter square. This is the SI unit of what? Pressure. ये तो प्रेशर की SI यूनिट है, और SI यूनिट आप फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स की जो SI यूनिट वो क्या है? न्यूटन है, और एरिया की है मीटर स्क्वायर में. तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय what? For this Newton divided by meter square. So meter Newton per meter square. This is the SI unit. And now this is this unit also known as this unit, this Newton meter square. Okay, this unit also known as a Pascal. This unit is known as a Pascal, and it is given by PA. Okay, this Newton meter square is also known as a Pascal, and this name is given for the honor of Blaise Pascal, one scientist Blaise Pascal. उन्हीं के नाम पर इसको नाम है ना Pascal भी अपन कह सकते हैं. Newton meter square means Pascal, है ना, और this is denoted by the PA. Okay, and we know that this 1 Pascal is equal to 1 Newton meter square. Okay, 1 Pascal is equal to 1 Newton meter square. Okay, so I think it's clear. The SI unit of pressure is a Newton meter square, and this Newton meter square is also known as a Pascal, which is denoted by the PA, and we know that 1 Pascal is equal to 1 Newton meter square. So इसी के बेस पे ना कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है. जस्ट यू गो थ्रू दिस वन. आपको ना सबसे मेन एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ध्यान रखना है कि एरिया जो आपका होता है ना, ये एरिया हमेशा दिस ऑलवेज इन अ मीटर स्क्वायर. ओके, हमेशा आपको एरिया मीटर स्क्वायर में लाके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. आप सेंटीमीटर स्क्वायर में है या किलोमीटर में है तो वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर. ओके, आइदर इट इज गिवन इन अ सेंटीमीटर और आइदर इट इज गिवन इन अ किलोमीटर स्क्वायर. सो यू हैव टू चेंज इट इज इन अ मीटर स्क्वायर, देन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. Now some examples of pressures in everyday life. You can see the page number 140 here. This all the examples of pressure in our everyday life is given here. Now the school bags and the soaping bags have the broadest straps or a belt, so that the area of contact increases and pressure on the hand or shoulder is reduced. आपने देखा होगा स्कूल बैग या सोपिंग बैग्स होते हैं ना, उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं, उसके बैंड्स जो होते हैं, स्टेप्स होते हैं ना, वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं. चौड़े इसलिए होते हैं ना, ब्रॉड क्यों होते हैं चौड़े, कि ताकि उनका एरिया बढ़े. और जितना एरिया हमने देखा ना कि जितना एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, है ना. आप बिल्कुल ना एक ना बिल्कुल थीन स्लाइस जैसी ना रोप जैसी स्टिंग जैसा ले लोगे तो वो ना उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो आपके ना
नेक पे या ना शोल्डर पे क्या करेगा, चुभेगा, वो लगेगा, है ना। लेकिन यदि मोटे बेल्ट हो गए तो क्या होगा, वो आपको इतना पता नहीं चलेगा, उतना हैवी नहीं लगेगा। दैट्स वाई this the belts or straps of the bags are made what broader or wider, okay, चौड़े होते हैं। Second things, the desert animals like camels can walk easily on the sandy land compared to the other animals because they have the broader and a flatter foot। आपने देखा होगा ना रेगिस्तान में ना, डेजर्ट में जैसलमेर जाओगे तो वहाँ पे ऊँट ही ऊँट आपको कैमल ही दिखेंगे, एंड दिस कैमल इज ऑल्सो नोन एज मतलब शिप ऑफ अ डेजर्ट। वाई इट इज बिकॉज इट कैन ईजिली रन थ्रू द व्हाट डेजर्ट और सैंड। द रीज़न इज दैट इट हैव द ब्रॉडर फीट ना, उसका जो फीट होता है, पैर होता है, पाँव होता है, बिल्कुल चपटा होता है, फ्लैट होता है ना, काफ़ी चौड़ा होता है, जिसके कारण क्या होगा, ज़्यादा एरिया होता है तो इतना प्रेशर नहीं लगता है ताकि वो अंदर नहीं धंसता है। अपने सैंड बाइक्स देखी होगी, सैंड बाइक्स के टायर भी मोटे होते हैं, यानी ज़्यादा एरिया होता है तो वो अंदर नहीं धंसते ना, रेत में, मिट्टी में नहीं धंसते हैं। तो ये भी कारण है कि उसका एरिया जो है वो ज़्यादा बनाया जाता है ताकि उस पर कम से कम प्रेशर हो। ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा, ओके। द कटिंग एजेस ऑफ नाइफ्स, ब्लेड्स, एक्सेस, कुल्हाड़ी देखी होगी, नाइफ्स देखी होगी, ब्लेड्स देखी होगी, वो बिल्कुल शार्प होती है, उसका आगे वाला ना पार्ट जो है काफ़ी शार्प होता है, मीन्स वो एरिया काफ़ी कम होता है। वाई इट इज़, क्योंकि जितना कम दिस कॉन्टेक्ट एरिया होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा और वो किसी भी चीज़ को अपना ना ईजीली जो है ना, आसानी से आप उसको काट सकते हैं ना। तो कुल्हाड़ी है या चाकू है या ब्लेड है, वो बिल्कुल शार्प इसीलिए बनाई जाती है। These are made the sharper. Due to this, the area of contact decreases and hence the pressure exerted ना, एरिया जितना कम होगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा और आसानी से आप किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करके उसको कटिंग कर सकते, काट सकते हैं। रेल्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स आर द फिक्स्ड और द लार्ज वाइड वुडन। रेलवे ट्रैक्स के नीचे आपने बड़े बड़े सीमेंट के ना स्लैब्स, लॉग देखे होंगे, पहले टाइप में ना वुडन के लॉग्स हुआ करते थे, तो वो भी मोटे बनाए जाते हैं। जस्ट इसके नीचे आप देख रहे हो ना, ये दिस स्लैब्स इज मेड अप ऑफ वुड, है ना। तो ये वुडन के बनाए जाते थे, लेकिन अभी जो है ना सीमेंट के बनाए जाते हैं ना, ताकि ये चौड़े बनाए जाते हैं ताकि उसके ऊपर जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर होगा। सो दिस हैवी ट्रस्ट ऑफ द ट्रेन ऑन द रेल इज स्प्रेड ओवर द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ स्लीपर्स। It reduces the pressures on the ground and prevent the rail from sinking into the ground। यानी ज़्यादा एरिया होता है ताकि प्रेशर उसके ऊपर कम लगे और वो मिट्टी के ज़मीन के अंदर वो रेलवे ट्रैक धंसे नहीं, है ना। वो मिट्टी के अंदर सिंक नहीं करता है, इसलिए वो वाइड और चौड़े बनाए जाते हैं। लास्ट वन, यू कैन हैव द सी द पॉटर प्लेस राउंड पीसेज ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड। आपने ना यदि प्लेटफॉर्म पे गए होगे तो जो कूली होते हैं, पॉटर होते हैं, जो अपना सामान लगेज उठाते, तो वो क्या होता है, कपड़ा होता है उनके पास में, उससे ना उसको राउंड बना के अपने हेड के ऊपर रखते हैं ताकि ज़्यादा बड़ा, जितना बड़ा होगा उतना ही उनके सिर के ऊपर प्रेशर कम लगेगा और उनको ज़्यादा भार नहीं लगेगा, है ना। So when they have to carry a heavy loads, by doing this they increase the area of contact। वो क्या कर रहे हैं, क्यों, जब वो राउंड बनाते हैं तो ज़्यादा कॉन्टेक्ट एरिया बनेगा तो उनके हेड के ऊपर जो प्रेशर है ना वो कम लगेगा, यानी वो ज़्यादा उनको हैवी महसूस नहीं होगा, है ना, इतना भारी महसूस नहीं होगा। सो द प्रेशर्स ऑन देयर हेड इज रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड। मीन्स इस वे में दे कैन ईजिली कैरी द लोड्स बाई मेकिंग दैट close round and put on their head। So these are the some examples of pressures in our daily life, means how we can manage decrease the pressure in our daily life, है ना, किस तरह से अपने क्या किस एक्टिविटी के थ्रू या किस how we can adjust this pressure इन our daily life, है ना, ताकि एरिया आप इंक्रीज करोगे तो प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। Now next, the pressure exerted by a liquid and a gas। So we know that the pressure is also exerted by the liquid and the gases। To show that the pressure in a liquid depends on its height or depth, क्योंकि जैसे आप हाइट और डेप्थ बढ़ोगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर भी बढ़ेगा। फॉर दिस यू कैन हैव वन एक्टिविटी, दिस 11.7 and 11.8।
आपको ना एक ओपन टेस्ट ट्यूब लेनी है ना, उसके एक एंड पे माउथ पे क्या करना है आपको ना, एक बैलून को बांध देना है और फिर उसमें पानी भरना है। तो जितना कम हाइट वाला पानी भरोगे उतना ही कम ये बैलून फूलेगा, और जितना ज़्यादा आप पानी भरोगे उसके अंदर उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा और उतना ही ज़्यादा बैलून फूलेगा, है ना, उतना ही वो इन्फ्लेटेड होगा। सो वी ऑब्जर्व दैट द साइज ऑफ बबल्स इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन दिस डेप्थ और हाइट ऑफ वाटर। जितनी वाटर की हाइट बढ़ेगी उतना ही ये बबल्स ज़्यादा फूलता रहेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है, इट प्रूव दैट कि जैसे डेप्थ और हाइट बढ़ती है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ओके, सेम दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो परफॉर्म हियर बाय टेकिंग टू बॉटल। ना, 2 बॉटल लेनी है और एक यहाँ पे ना आपको ना पाइप ट्यूब होल करके उसको ना लगा देना और बाहर से उसके मुंह पे एक बैलून बांधना है। अब जितना ज़्यादा उसमें पानी भरोगे उतना ही ज़्यादा वो बैलून फूलेगा। कम पानी भरोगे तो कम फूलेगा और ज़्यादा भरोगे तो ज़्यादा बैलून फूलेगा। इसी तरह से एक और भी ना आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक बॉटल लो और दिस एक्टिविटी इज 11.9 to show that the liquid exerted equal pressures at the same depth। यानी सेम डेप्थ पे ना आपने एक बोतल ली, पानी से भर ली और सेम हाइट पे सेम डिस्टेंस पे आपने क्या कर दिया, उसके बोतल के चारों तरफ होल बना दिए। तो जो वाटर इससे ना पास होगा ना वो इक्वल डिस्टेंस दूरी पे जाके ही गिरेगा, है ना। लेकिन यदि आपने ना सपोज दैट इसी की जगह आपने क्या किया होता कि एक छेद यहाँ पे बनाया होता ना, लाइक दैट यू कैन सी दिस बोतल। ओके, और एक होल आपने यहाँ पे बनाया और एक होल यहाँ पे बनाया है ना। इसका पानी इधर ही गिरेगा और ये होगा तो ये ज़्यादा दूर जाएगा, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और इसका जो डिस्टेंस है वो कम है। यानी जितना आप ज़्यादा हाइट लोगे तो ज़्यादा दूर ज़्यादा प्रेशर लगेगा और वो पानी जो है ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, है ना। और जितना ही नीचे आप लगाओगे उतना ही पानी कम दूरी पे जाके गिरेगा। ओके, so now you see this science beats at the depth of the 1000 meter the pressures due to liquid is 100 times more। यानी डेप्थ पे यदि हर एवरी 1000 मीटर पे, हर 1000 मीटर पे आप जितना 1000 मीटर गहराई पे जाते नीचे जाओगे यदि समुद्र में के अंदर में भी, तो प्रेशर जो है वो 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ठीक है, यानी कि 1000 मीटर पे 100 है तो वो 2000 पे 2000 ना 2000 टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स वाई इसी कारण से ना डैम्स आर मेड स्ट्रॉन्गर एंड ब्रॉडर एट द बॉटम। इसीलिए आपने ना देखे होंगे डैम्स जो बांध बनाए होते हैं ना, ऊपर से तो क्या होते हैं कम चौड़े होते हैं और नीचे से उसकी वॉल जो है ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। जस्ट लाइक यू सी जवाई डैम ना, जवाई डैम भी आप देखोगे बड़े गौर से उसकी वॉल देखोगे ना तो ऊपर से तो कम चौड़ी और नीचे से जाते हुए ज़्यादा चौड़ी होती है ताकि वो प्रेशर को हैंडल कर सके। सो डैम्स आर मेड स्ट्रॉन्गर एंड ब्रॉडन एट द बॉटम देन एट द टॉप ऑफ टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर्स एट द ग्रेटर डेप्थ्स। लाइक लिक्विड्स गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर्स लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। तो मीन्स ना गैसेज जो है गैस है वो भी एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके लिए काफ़ी ना वेरी सिंपल एग्जांपल है, एक्टिविटी है कि आप ना कोई भी एक बैलून लो ना, बैलून में ना पंप से हवा भरते जाओ तो क्या होगा, जितना ज़्यादा आप हवा भरोगे वो उतना ही फैलेगा और एक टाइम इतना आएगा कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो ब्रस्ट कर जाएगा। साइकिल के ट्यूब में भी आप ज़्यादा हवा भरते हैं तो क्या होता है, इट विल ब्रस्ट ना, वो फूट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि उस प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो लिक्विड भी मीन्स क्या करता है, लिक्विड भी और गैस भी जो है क्या, इट ऑल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर। ओके, इसी तरह से जो रबर सकर्स होते हैं ना, रबर सकर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो किसी भी आप ना वॉल पे या ग्लास पे आप उसको ना चिपका सकते हो ना, स्टिक कर सकते हो। बिकॉज वाई, बिकॉज ड्यू टू दिस pressure. Okay, now next we are going to talking about the atmospheric pressure, because atmosphere means this
the sea and oceans of this air. We are living in a oceans of air. हमारे चारों तरफ ये एयर है ना, एयर का समुद्र है, महासागर है, उसमें अपन रह रहे हैं. सो दिस एयर इज ऑल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन अस. So atmospheric pressure, now see page number 142. All of us are immersed in the sea of air is known as the atmosphere. This blanket around us, this is called water, atmosphere. This atmosphere extend up to the many kilometers above the surface of the earth. Atmosphere experiencing its pressures all the time. This is called atmospheric pressure. Means atmosphere due to presence of this air, it express or we are also feeling some pressure. So that pressure is called what? Atmospheric pressure. Means the pressure exerted or built by the air is called what? Atmospheric pressure. The weight of atmospheric pressure is down on the earth's surface and creates a pressure on it. The pressure at any point exerted by a weight of air above it is called the atmospheric pressure. Now underline this one, last underline this from here. The pressure at any point exerted by the weight of the air above it is called the atmospheric pressure. We know that this air is a material things and material things have some weight on it. So due to the weight of this air, it exerts some pressure at any point, that is called the atmospheric pressure. Now the atmospheric pressures on the earth's surface at the sea level is about the 100 kilopascal. Means this pressure is given by a large unit that is called a kilopascal, and that is written like a kPa. This is kilopascal. Okay, this is kilopascal. Okay, kilopascal means it's a large unit. Okay. Now next the uses and application of atmospheric pressure. Atmospheric pressure की application और uses कि ये जो atmospheric pressure है, that pressure is work on us. So this atmospheric pressure is used in many of things that we do or use. Some of the applications of the atmospheric pressure is given here. First one, when we are drinking the juice and water through the this is straw है ना. कोल्ड ड्रिंक आप ना पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप या जूस है ना, या पानी आप स्ट्रॉ से जब पीते हो तो वहाँ पे भी क्या है, दिस एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज देयर. क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता तो जब हम उसको शक करते हैं तो एटमॉस्फेयर भी, एयर भी उसके ऊपर प्रेशर डालता है, उसी के कारण हम उसको इजी शक कर पाते हैं ना. ठीक है. So the drinking, first you see page 143, this one a drinking of water, fruit juice or a cold drink with a straw. The drinking of a liquid with the help of a hollow straw is based on the pressure exerted by the atmosphere on the surface of a liquid. When sucked through a hollow straw, the liquid rises into straw due to difference in the pressure of air inside and outside, है ना. उस स्ट्रॉ के अंदर और बाहर दोनों के एयर प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण वी कैन एबल टू शक दैट लिक्विड फ्रॉम दैट बोतल और जूस. ओके. सेकेंड थिंग, दिस इंजेक्शन सीरीज में भी अपन मेडिसिन भरते हैं ना, तो वो भी दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम वे द स्ट्रॉज एक्शंस. एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स फोर्सेस ए लिक्विड टू मूव इनटू द सीरीज व्हेन इट्स प्लंजर्स इज विड्रॉन, है ना. इंजेक्शन अपन उसका प्लंजर्स विड्रॉ करते हैं तो उसके प्रेशर के कारण वो मेडिसिन को, लिक्विड को, उसको अंदर फिल होने देता है. वैक्यूम क्लीनर इज ऑल्सो डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन दिस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. A vacuum cleaner helps to clean up the debris from the carpet and remotest the corner of a house, ना. वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हैं जहाँ पर पहुँच नहीं सकती, कॉर्नर के बेड के नीचे ना, कहीं पे ना, या फिर कुछ डस्ट वो साफ करने के लिए अपन ना वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं. वैक्यूम मीन्स व्हाट? द वैक्यूम मीन्स द प्लेस वेयर देयर विल बी नो एयर. तो उसके अंदर भी ना वैक्यूम क्लीनर भी जो होता है क्या वैक्यूम क्रिएट करता है ना, और वैक्यूम क्रिएट करने के कारण वो क्या करता है, जहाँ पे भी कुछ भी डस्ट वस्ट होता है ना, उसको शक कर लेता है, अपनी तरफ शक कर लेता है, खींच लेता है.
और उसके सारे हम सफाई कर लेते हैं, ठीक है। Now you can see this the last topic at page 144. This is the vacuum cleaner. तो इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, ओके। A vacuum cleaner is an electrical appliance that cleans the surface by suction. A fan inside the vacuum cleaner lowers the air pressure and creates a low pressure inside the device. क्या होता है, एक फैन होता है उसके अंदर, है ना, वो वैक्यूम क्लीनर जो है दैट लोअर्स द एयर प्रेशर एंड क्रिएट्स, वो क्या करता है, एयर प्रेशर को कम कर देता है और लो प्रेशर बनाता है, उसके अंदर लो प्रेशर वाला एरिया बनाता है। तो बाहर से ज़्यादा प्रेशर लगता है तो वो अल्टीमेटली जो भी डस्ट पार्टिकल्स और डेब्रिज होता है दैट इज शक बाय द सक्सेशन फोर्स, इट कैन बी easily taken by that vacuum cleaner. So consequently the air and dirt particles on the near the surfaces are sucked into the device and this is what helps in the cleaning the surface. और इस तरह से हम सरफेस को या रिमोटेस्ट एरिया जहाँ पर अपन पहुँच नहीं पाते वहाँ पे अपन वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर सकते हैं, okay. So this is all about this chapter and now this chapter is finished. If you have any doubt, I advise again and again that please everybody go through the textbook and read all the activities because many more things are given here, okay. So in today's class we discuss about this pressure as a unit of pressure, what is the relationship between the pressure, force and area, how it is increased with pressure and how it is decreased with the area, okay. प्रेशर ना फोर्स के साथ साथ बढ़ता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, जैसे फोर्स बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा, बट एरिया और प्रेशर कैसे, इट्स डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे आपका ना एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एरिया कम हो जाएगा, ओके। देन यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज a Newton meter square and this Newton meter square is also known as a Pascal, which is denoted as a PA, okay, and 1 Pascal is equal to 1 Newton meter square. Then next atmospheric pressure and there are applications of pressures we discussed, that all things are given in a textbook, okay. So everybody you go through this textbook and please note down this one in your notebook. If you have any problem, difficulties regarding this one or any topic of your textbook, you can ask me, I will explain many times, okay. So have a nice day, thank you.